الرحمن الرحیم السلام علیکم اور نیوز کے ساتھ میں ہوں منظارہ روک کرتے ہیں خبروں کا۔ اب خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ نامہ نگار غلام شبیر لشاری کی رپورٹ کے مطابق تحصیل کورچٹھا کے علاقے خانپور منجووالا میں 4 شبان بروز بدھ جشن ولادت شہزادہ علی قاسم خانپور منجووالا تحصیل کورچٹھا میں جشن ولادت شہزادہ علی قاسم بڑی جوش و خروش سے منایا گیا، جس میں ذاکر اہل بیت اعجاز حسین گلفاز آف فاضل پور نے خطاب کیا۔ متولی امام بارگاہ حسینیہ زوار سید چراغ حسین شاہ کے ہمراہ سید اصغر شاہ، سید کمبر شاہ، فضل کسائی، یونس قاسم شیخ، اہل جوتائی اور اہل کھوئی سکھیری اور اہل علاقہ نے شرکت کی۔ سیکیورٹی انتظامیہ پولیس چوکی خانپور نے بھرپور تعاون کیا۔ صادق آباد سے خبر دیتے چلے جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی بہاولپور میٹروپولیٹن کارپوریشن کی تنظیم کا اہم اجلاس پیپلز پارٹی بہاولپور کے عبد الرحمان مغل کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا۔ اجلاس میں پیپلز اسٹڈی سرکل کے ضلعی صدر وقار عزیز صدیقی، انسانی حقوق ونگ کے ضلعی صدر کلیم اللہ ایڈوکیٹ اور خواتین ونگ کی ڈویژنل نائب صدر نسرین ناز نے بطور خاص شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت ملک امتیاز جنرل صدر پاکستان پیپلز پارٹی بہاولپور میٹروپولیٹن نے کی۔ اجلاس میں سینئر نائب صدر سید امجد بشیر احمد داؤد چوہان ایڈوکیٹ، ڈپٹی جنرل سیکرٹری شاہ خضر حسن، انفارمیشن سیکرٹری محمد آصف بھارا ایڈوکیٹ، عبد الرحمان مغل فائنانس سیکرٹری، حسنین کلیم اللہ ایڈوکیٹ، ملک اسامہ مجید اور جنرل سیکرٹری یونین کونسل نمبر 3 اظہر چڑھنا نے شرکت کی۔ اجلاس میں 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر پر مظلوم کشمیریوں کی ہندوستان کے ناجائز قبضے کے خلاف جدوجہد آزادی کی تحریک میں لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور ان سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی بہاولپور میٹروپولیٹن کارپوریشن کی تنظیم کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا گیا اور پیپلز پارٹی بہاولپور کی یونین کونسل سطح کی تنظیم سازی کے عمل میں مزید تیزی لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں آئندہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ہر یونین کونسل میں پیپلز پارٹی کے مضبوط امیدواران کے انتخاب کے عمل میں تمام الائیڈ ونگز کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادتوں کے دورہ بہاولپور کے پروگرام پر بھی مشاورت کی گئی۔ اجلاس کے اختتام پر شہدائے کشمیر، شہدائے پیپلز پارٹی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ سی ای او ہیلتھ بکر ڈاکٹر عتیق الرحمان خان کا بڑا ایکشن، گورنمنٹ ڈسپنسری چاہ فقیروالا ڈگر اولکھ میں قومی پولیو مہم میں ڈیوٹی سے غیر حاضر ہیلتھ وزٹر، مڈ وائف اور سینیٹری انسپیکٹر کو موقع پر معطل کر دیا۔ بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولکھ کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ ڈسپنسری چاہ فقیروالا کے اچانک دورہ کے دوران عملہ جس میں لیڈی ہیلتھ وزٹر، مڈ وائف اور سینیٹری انسپیکٹر غیر حاضر پائے گئے، ڈاکٹر عتیق الرحمان خان نے سخت ایکشن لیتے ہوئے تینوں ملازمین کو موقع پر ہی معطل کر دیا۔ غیر حاضر اور کامچور ملازمین سے کسی بھی قسم کی رعایت نہیں برتی جا سکتی۔ اپنی ڈیوٹی کو احسن طریقے سے سر انجام دینے والے ماتھے کا جومت، جبکہ کامچور ملازمین کسی بھی قسم کی نرمی یا رعایت کی توقع نہ رکھیں۔ اب خبر شامل کرتے بلوچستان کے شہر سبی سے، جہاں پر اسپورٹ فیسٹیول 2025 کی اختتامی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خاص بریگیڈیئر ایف سی سبی اسکاؤٹ نارتھ بلوچستان عمر الطاف اور ان کی مسز تھی۔ تقریب میں اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہیڈ ٹیچرز، طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ مزید احوال بتا رہے ہیں سبی سے خرم شہزاد اس رپورٹ میں۔ اسپورٹس فیسٹیول 2025 کی اختتامی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اختتامی تقریب کا انعقاد گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج سبی میں کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خاص بریگیڈیئر ایف سی سبی اسکاؤٹ نارتھ بلوچستان عمر الطاف اور ان کی مسز تھیں۔ تقریب میں کرنل شہزاد حسین، کرنل شہریار، کرنل حسن، وائس چانسلر میر چاکر خان رند یونیورسٹی جہاں وش کریم، اسسٹنٹ کمشنر منصور علی شاہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر علی اصغر مکسی، فوکل پرسن اسپورٹس فیسٹیول انچارج گرلز گائیڈ ٹرینر شازیہ خرم، پرنسپل گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج سمیت گرلز اسکول، کالج ہیڈز، ٹیچر سمیت طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بریگیڈیئر ایف سی سبی اسکاؤٹ نارتھ بلوچستان عمر الطاف اور ان کی مسز نے باقاعدہ ربن کاٹ کر اسپورٹس فیسٹیول کی اختتامی تقریب کا افتتاح کیا۔
स्पोर्ट्स फेस्टिवल का बाकायदा आगाज अल्लाह के पाक कलाम से किया गया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल की रंगारंग तकरीब में एफसी पब्लिक स्कूल की तालबात ने मेहमान खास और आने वाले तमाम मेहमानों को वेलकम पेश किया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में गर्ल्स स्कूलों की तालबात समेत मीर चाकर खान रेंज यूनिवर्सिटी और गर्ल्स कॉलेज की तालबात ने भी हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में थ्रो बॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, रुकावट रेस, सादा रेस व दीगर खेल शामिल थे। तकरीब से लेफ्टिनेंट कर्नल शहजाद हुसैन ने खिताब करते हुए कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल सत्तार लांगो और उनकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपना अहम किरदार अदा किया। आज से बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम आज के दिन को 5 फरवरी 2025 को यौम कश्मीर के तौर पे मना रहे हैं, जिसके ज़रिए हम अक़वाम मुत्तहिदा और मगरिब की तमाम मुहज़्ज़ब कौमों को पैगाम देना चाहते हैं कि वो सब मिलकर कश्मीर के अवाम को आज़ादी दिलवाने में अपना रोल अदा करें। आज के दिन से हवाले से हम अपनी आने वाली नस्लों को ये ज़हन नशीन करवाना चाहते हैं कि हम ना कभी कश्मीर का मसला भूले हैं और ना ही कभी इंशाअल्लाह अपनी नस्लों को और अपने आप को ये भूलने देंगे, जब तक कि कश्मीर का ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक और कश्मीरी अवाम की अमलों के मुताबिक हल नहीं हो जाता। दूसरा अहम पॉइंट आज के इवेंट के हवाले से ये गैर निसाबी सरगर्मियों और स्पोर्ट्स के हवाले से मुनक्कद किए जाने वाला मुकाबलों का ये इवेंट, जिसको मुकम्मल करने में और इसको मुनक्किद करने में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सिब्बी अब्दुल सत्तार लांगो और उनकी टीम ने मिलके तमाम 8 स्कूलों में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ने, एलिमेंट्री कॉलेज ने और मीर चाकर यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ गेम्स और टैबलोज में हिस्सा लिया और जिसमें इन बच्चों ने अपने टैलेंट का मुजाहरा किया। इस इवेंट को, आज की तकरीब को, क्लोजिंग तकरीब को देखने के बाद आप सब लोगों को मालूम हुआ होगा कि हमारे इन बच्चों में अल्लाह ताला ने कितना टैलेंट रखा हुआ है। सिर्फ इनको मौके और अपॉर्चुनिटी मिलने की ज़रूरत है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज के इवेंट में होने वाली तमाम ये सरगर्मियाँ हमारे बच्चों के लिए आने वाले दिनों की खुशगवार यादों में से है। इस इवेंट को, इन तमाम स्पोर्ट्स मुकाबलों को और इन चीज़ों को मुनक्कद करने के लिए सिबी स्काउट्स और एफसी बलूचिस्तान नॉर्थ ने अपना हिस्सा डाला। वो इन बहुत सारी चीज़ों में आपके साथ शाना बशाना खड़े हुए और सबसे बढ़ के आपको एक सिक्योर और एक महफूज एनवायरनमेंट मुहैया किया, जिसमें तमाम बच्चों ने तमाम कॉलेजेस ने मिलजुल के हिस्सा लिया और बहुत सारी गैर निसाबी और स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ अदा की। ये हमारा फ़र्ज़ है और हमारी ड्यूटी है कि हम सब मिल के अपने इन बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए कोशिश करते रहें और अपना हिस्सा डालता रहें। मैं आखिर में तमाम टीचर्स का, तमाम स्टूडेंट्स का, तमाम पार्टिसिपेटिंग बच्चों का, तमाम खिलाड़ियों का और ख़ास तौर पे मिसेस बेगम कमांडर सिबी स्काउट्स ब्रिगेडियर उमर अल्ताफ़ की फैमिली का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए और आज के इवेंट को कलरफुल बनाया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तकरीब में चारों सूबों की सकाफत को भी उजागर किया गया। तकरीब में मिसेस ब्रिगेडियर ने मुख्तलिफ स्कूलों में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन पर आने वाले फातेह टीमों, जजेस, फोकल पर्सन शाजिया खुरम, रेफरी व दीगर में नगद इनामात और सिविनियर भी तकसीम किए। तकरीब में आने वाले तालबात ने एफसी बलूचिस्तान और महकमा एजुकेशन के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि एफसी बलूचिस्तान तालीम के साथ साथ खेलों के सरगर्मियों में भी नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। खेलों के मैदान में सजने से न सिर्फ तालबात की हौसला अफजाई बल्कि उनको जिस्मानी वर्जिश करने का मौका भी फराहम किया गया। और आखिर में योम कश्मीर डे के मुनासबत से कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के हवाले से मिसेस ब्रिगेडियर एफसी सिब्बी स्काउट नॉर्थ की सरबराही में कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती रैली भी निकाली गई। रैली में टीचर्स, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तालबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली में शरीक तालबात ने कश्मीरी झंडे और हाथों में बैनर्स उठाए हुए थे। इस दौरान तालबात ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे भी लगाए। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी, बलोचिस्तान।
जबीन मरजानी साहिबा। कराची से एक अहम खबर से आगाह करते चले हमारे क्राइम रिपोर्टर कराची आपदा परवीन बाजकानी की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ लोगों ने आज सूबाई वजीर बराए सनअत व तजारत जाम इकरामुल्लाह धारीचो से इनके दफ्तर में मुलाकात की और अपने मसाइल से मुताल्लिक इन्हें आगाह किया। सूबाई वजीर जाम इकरामुल्लाह धारीचो ने इनके मसाइल तवज्जो से सुने और इनके मसाइल के हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे मियां फ़हीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने प्रेस क्लब शेखुपुरा को सील कर दिया। शेखुपुरा प्रेस क्लब को सील करने के खिलाफ सहाफ़ी तंजीमों का शदीद एहतजाज। सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी कैंप लगा लिया। एहतजाज में डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ शदीद नारेबाजी। डिप्टी कमिश्नर के इस इक़दाम की मज़म्मत करते हुए तस्वीर पर क्रॉस लगा दिया। डिप्टी कमिश्नर ने अपने अख्तियारात से तजावज़ करके प्रेस क्लब को सील किया। बद से बदतरीन दौर में भी प्रेस क्लबों को सील नहीं किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने हक और सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। प्रेस क्लब के बंदिश के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। हफ्ते के रोज़ डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ भरपूर एहतजाज करते हुए इसके ऑफिस का घेराव किया जाएगा। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट ज़िला उकाड़ा की तरफ से 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तहसील रनाला खोर्द में अज़ीमुश्शान रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़ियादत इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट पाकिस्तान के जॉइंट सेक्रेटरी महर मोहम्मद सईद जेलदार, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील रनाला खोर्द चौधरी ज़ियाउल्लाह, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी अमीर हमजा चौधरी, डिविजनल कोऑर्डिनेटर पीर सैयद फ़ियाज़ अख्तर बुखारी, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी उकाड़ा हाफिज ज़ुबैर फ़ारूक, डिस्ट्रिक्ट चीफ ऑर्गेनाइजर उकाड़ा सैयद ताहर अब्बास करमानी, तहसील रनाला चीफ ऑर्गेनाइजर राव इमरान आकिल, तहसील रनाला चेयरमैन मियां यासीन, तहसील रनाला नायब सदर मलक नासर शहजाद, तहसील रनाला नायब सदर बिलाल रशीद, तहसील रनाला जनरल सेक्रेटरी सैयद नजमुल सकलैन शाह गिलानी, रेनाला सिटी मीडिया कोऑर्डिनेटर मलक इरफान, राबता सेक्रेटरी मोहम्मद अफजल कम्बू, ताहरा सईद, मेमोरियल अस्पताल के ओनर मोहम्मद रफ़ीक कम्बू और दीगर ओहदेदारान ने की। रैली का आगाज़ असिस्टेंट कमिश्नर तहसील रनाला खोर्द के ऑफिस से हुआ और रेनाला सिटी के कलमा चौक पर दूसरी जमातों के काफिले भी शामिल हुए। मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी जावेद अलाउद्दीन, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील रनाला खोर्द चौधरी ज़ियाउल्लाह, ASP रनाला सरकर सैयद दानियाल हसन और दीगर कायदीन ने कश्मीर के हवाले से रैली से पुरजोश खिताब किया। हारूनाबाद अपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ढरांवाला के अज़ीमुश्शान तालीमी टेस्ट ब्रेन ऑफ ढरांवाला में अलीगढ़ पब्लिक स्कूल शहीद चौक के ज़ैन ततला ने 80 मार्क्स लेकर पहली पोजीशन हासिल की। अपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ढरांवाला की तरफ से अज़ीमुश्शान तालीमी टेस्ट ब्रेन ऑफ ढरांवाला मुनक़्क़द किया गया। ये टेस्ट 8वीं जमात में दाखिले के लिए लिया गया। अपेक्स कॉलेज ढरांवाला के सरसब्ज़ शादाब ग्राउंड में मुनक़्क़द होने वाले इस तालीमी टेस्ट में इलाके भर के स्कूलों के तलबा तालबात ने हिस्सा लिया। टेस्ट का ऐलान मेरिट पर किया गया, जिसके मुताबिक अलीगढ़ पब्लिक स्कूल शहीद चौक के तालिब इल्म ज़ैन ततला ने 80 मार्क्स लेकर अव्वल, दी अरकम स्कूल ढरांवाला के बिलाल अनवर ने 78% मार्क्स लेकर दोम, जबकि इसी स्कूल के अहमद साकब ने 57 मार्क्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। इन होनहार बच्चों को अपेक्स कॉलेज ढरांवाला की तरफ से शानदार इनामात से नवाजा गया। पहली पोजीशन वालों को कंप्यूटर बतौर इनाम दिए गए और दीगर बच्चों को ट्यूशन फीस में डिस्काउंट का ऐलान किया गया। अपेक्स कॉलेज ढरांवाला के प्रिंसिपल अल्लाह रखा महारवी और इनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारा नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर शर्किया और ओच शरीफ का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने अहमदपुर शर्किया का दौरा किया। वह तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर शर्किया में गए। उन्होंने पेट्स और गायनी वार्ड के तोसी कामों का इफ्तिताह किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर शर्किया के मुख्तलिफ सेक्शन में गए और फ्राहम करदा तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने THQ अहमदपुर शर्किया में सफाई सुथराई और शजरकारी के कामों का भी मुआयना किया। बाद अज़ां डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने ओच शरीफ का दौरा किया। उन्होंने ओच शरीफ में चौराहे पर नस्ब किए गए मोनूमेंट्स और फुहारे का इफ्तिताह किया और सफाई सुथराई और शजरकारी के अमूर का जायजा लिया।
खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान हदूद थाना काला शादन लुड में ज्यादती का शिकार बनने वाली खवातीन का सेशन कोर्ट डेरा गाजी खान में अपने वकील एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जुल्फकार अली सिद्धू के हमरा मौक़िफ़ मुतासरा खातून का कहना है कि मकामी पुलिस बिल्कुल तामन नहीं कर रही। मेरे मुल्ज़मान बाअसर लोग हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हाई कोर्ट की तरफ से जो हुक्मनामा जारी हुआ था अभी तक इस पर अमल जारी नहीं हुआ। मुझे इंसाफ सिर्फ DNA के लिए हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मुकामी पुलिस ने फ़ोन करके कहा कि आप लाहौर पहुंचे। मैं अकेली लाहौर पहुंची, यहाँ तक कि मेरे साथ लेडीज़ कांस्टेबल भी ना थी। आज पहली पेशी है सेशन कोर्ट में, दूसरी पेशी आने वाली 14 तारीख को पुलिस ने मुअज़्ज़ज़ अदालत से मांगी है। पुलिस मुल्ज़मान से साज़बाज़ है। मेरे मुकदमा में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल गैर तसल्ली बख्श है। पुलिस मुल्ज़मान से पैसे लेकर मेरा मुकदमा खराब करने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। वधुआ गेट में हाईवे पर और यहाँ वकला ने SSP हैदराबाद के खिलाफ एहतजाज जारी। हाईवे ब्लॉक हैदराबाद में पुलिस और वकला के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया है। वकला ने SSP हैदराबाद के तबादले के लिए एहतजाज जारी रखने का फैसला किया है। SSP का तबादला नहीं होता, एहतजाज जारी रखा जाएगा। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला ने शहबाज बिल्डिंग से रैली निकाली और हाईवे की तरफ रवाना हो गए। वकला बरादरी ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि SSP हैदराबाद फर्रुख लंजार का तबादला किया जाए। वकला के मुताबिक जब तक SSP का तबादला नहीं होता वो नेशनल हाईवे को ब्लॉक रखेंगे। गुज़िश्ता रात वकला बरादरी ने बटाई नगर थाने के SHO और SSP हैदराबाद फर्रुख लंजार के खिलाफ SSP ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दिया था और SSP हैदराबाद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। DIG हैदराबाद तारक रज़ाक धारजियो ने वकला से मुज़ाकरात किए और SSP के तबादले का वादा भी किया था। बकर शोबा अंग्रेज़ी थर्ड यूनिवर्सिटी बकर के ज़ेर एहतमाम AI के दौर में ज़ुबान के अनवान से पहले बैनुल-अक़वामी तहकीकाती सिम्पोजियम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्की गैर मुल्की माहिरीन तालीम ने अपने तहकीकाती मकालाजात पेश किए। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औरक की रिपोर्ट के मुताबिक शोबा अंग्रेज़ी थर्ड यूनिवर्सिटी बकर के ज़ेर एहतमाम बैनुल-अक़वामी तहकीकाती सिम्पोजियम का इनेकाद किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ओतारा मलेशिया से शोबा अंग्रेज़ी की सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर मेंदमर कौर सरजीत सिंह के अलावा मुल्क के नामवर यूनिवर्सिटी से माहिरीन तालीम ने शिरकत की। इस मौका पर थर्ड यूनिवर्सिटी और दीगर तालीमी अदारों के तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। माहिरीन तालीम ने अपनी तहकीकाती मकालाजात पेश करते हुए कहा कि आने वाले दौर दीगर शोबाजात के साथ तालीम के शोबा में भी बहुत बड़ी तब्दीलियाँ रोनमा होंगी और मौजूदा ज़बानों के साथ नई ज़बानों के जन्म लेने का इम्कान भी मौजूद है। इसलिए तलबा को खुद आने वाले दौर की तब्दीलियों के लिए तैयार करना होगा। वाइस चांसलर थर्ड यूनिवर्सिटी बकर प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद बुस्तार और शोबा अंग्रेज़ी की सरबराह डॉक्टर इरम जमील ने अज़म का इजहार किया कि ऐसे प्रोग्राम आइंदा भी मुनक्कद किए जाते रहेंगे। तलबा ने बैनुल-अक़वामी तहकीकाती सिम्पोजियम के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। आलमी रुझानात के मुताबिक मकामी तलबा ने तरबियत से पाकिस्तानी तलबा की तालीमी काबिलियत में इजाफा होगा। तालीमी इदारों को ऐसे तहकीकाती प्रोग्राम का इनेकाद यकीनी बनाना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ASA के अहदेदारान सीनियर यूनिवर्सिटी उस्ताज़ा की साहबजादा मियाँ मोहम्मद उस्मान नजीब ओवैसी वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे से मुलाकात हुई। मुलाकात में यूनिवर्सिटी को दरपेश माली मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के सदर डॉक्टर रियाज हुसैन सिंधु ने मियाँ मोहम्मद उस्मान नजीब ओवैसी को यूनिवर्सिटी के लिए हुकूमती माली इमदाद की कोशिशों को तेज़ करने की गुजारिश की। इस पर मियाँ मोहम्मद उस्मान नजीब ओवैसी ने कहा कि पहले भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का मामला इमदाद के लिए पहुँचा चुके हैं और कौमी असम्बली के फ्लोर पर भी इस मसले को उठा चुके हैं और इंशाअल्लाह वो अपनी तमाम तार कोशिशों को बरोकार लाते हुए जामिया को हुकूमती माली इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। इस मौका पर जनरल सेक्रेटरी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन डॉक्टर मोहम्मद बदर हबीब, फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर खनान खान तरीन, सेनेडेक मेंबर मोहम्मद जमान मौजूद थे, जबकि सीनियर फैकल्टी में डेन दोस्त मोहम्मद खान, प्रोफेसर डॉक्टर मलक शेर मोहम्मद, प्रोफेसर डॉक्टर नवीद मलगानी, डॉक्टर मलक इदनान, डॉक्टर मोहम्मद अजहर नवाज, डॉक्टर सजाद, फैसल शहजाद, मोहम्मद मनव्वर, डॉक्टर मुअज़्ज़म दुरानी, सैयद फरहान आबद और दीगर शामिल थे।
खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फरूक का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर शर्किया और ओच शरीफ का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फरूक ने अहमदपुर शर्किया का दौरा किया। वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर शर्किया में गए। उन्होंने पेड्स और गायनी वार्ड्स के तोसी कामों का इफ्तिताह किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया इनके हमरा थे। बादशाह डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर शर्किया के मुख्तलिफ सेक्शंस में गए और फराहम करदा तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने THQ अहमदपुर शर्किया में सफाई सुथराई और शजरकारी के कामों का भी मुआयना किया। बादशाह डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने ओच शरीफ का दौरा किया। उन्होंने ओच शरीफ में चौराहे पर नस्ब किए गए मोनूमेंट्स और फुवारे का इफ्तिताह किया और सफाई सुथराई शजरकारी के अमूर का जायजा लिया। इस्लामाबाद कायद सहाफ़त सदर PFUJ मोहतरम अफजल भट्ट की क़यादत में नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से पीका एक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत कायद सहाफ़त अफजल भट्ट और नौ मुंतखब सदर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर तारक अली विर्क ने की, जिसमें सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद अजहर जतोई, सेक्रेटरी जनरल मैडम नैयर अली, आसफ बशीर चौधरी, सेक्रेटरी जनरल RIUJ और दीगर सीनियर सहाफ़ियों समेत मकामी सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली इस्लामाबाद प्रेस क्लब से शुरू होकर D चौक पर इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ पर भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और अफजल भट्ट सदर PFUJ तारक अली विर्क ने काले कानून के खिलाफ मुजाहरीन से खिताब किया। कायद सहाफ़त अफजल भट्ट ने हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी से खुसूसी गुफ्तगू की। आइए सुनते हैं। नेशनल प्रेस क्लब के सदर अफजल भट्ट साहब के पास और उनसे जो तफसील मालूम करते हैं कि जो पीका एक्ट के तहत ये कानून बनाया गया है, इसकी तफसीलात इनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। भट्ट साहब, ये मुझे बताएं, ये जो पीका एक्ट का कानून है, ये हालांकि फेक खबर के हम भी मुखालिफ हैं, लेकिन उसके बावजूद जो शिकें इन्होंने बनाई हैं उसकी जरा प्लीज तफसीलात बता दीजिएगा। देखें, शिक्के हम किसी एक शिक दूसरी शिक की बात नहीं करते। हम इस पूरे कानून को काला कानून समझते हैं और सारे कानून को मुस्तरद कर चुके हैं, इसलिए कोई ऐसी शिक नहीं है जिसकी हम तारीफ कर सकें। बट सब जबकि ये जब अपोजिशन में होते हैं, ये जो गवर्नमेंट होती है और इसको वो काला कानून कह देते हैं और हमें हमारे साथ आके खड़े होते हैं। अब वो जब वो बरसरे इक़्तिदार में आके जब ये कानून बनाते हैं, उस वक्त ये उनको ये कानून बड़ा अच्छा नजर आता है। ये देखिए, बदकिस्मती की बात यह है कि जब तक कोई जमात अपोजिशन में हो तो वो मीडिया को अपनी आंख का तारा समझती है, और जो ही वो कोई जमात जो है हुकूमत में जाती है तो इसी मीडिया को अपनी आंख का कांटा समझना शुरू कर देती है। तो ये डबल स्टैंडर्ड से ऐसी जमातों को अपना खत्म करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अब तारक अली विर्क साहब जो कि जर्नलिस्ट पाकिस्तान रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, और जो पीका एक्ट के तहत जो कानून पास किया गया है उसकी तफसीलात उनसे मालूम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तारक साहब, ये मुझे बताएं कि ये जो पीका एक्ट कानून है, इसका क्या इन्होंने अमल दरामद किया और इसका क्या जो शिकया है, क्या चीजें गलत हैं? देखिए, ये हम तो इस पूरे बिल को मुस्तरद करते हैं और हमने इस बिल को जो है वो मुस्तरद किया है क्योंकि हुकूमत ने हमारे साथ वादा किया था कि वो बिल लाने से पहले जो है वो उसका मुसवदा जो है हमारे साथ शेयर करेंगे, उसके बाद जो है वो बिल लाया जाएगा। लेकिन हुकूमत ने रातों रात जो है वो इस बिल को पास करवाने की कोशिश की और हमारे साथ जो वादा किया था वो वादा खिलाफी की। लेकिन पाकिस्तान के सहाफ़ी जाग रहे हैं, वो समझते हैं कि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। अगर नीयत ठीक होती तो वो स्टेक होल्डर से मुशावरत करते, उनकी इनपुट लेते, उसके बाद ये बिल लाते। लेकिन हुकूमत की तरफ से ऐसा नहीं किया गया और हुकूमत के इत्तेहादी बल्कि अपोजिशन तमाम मिल के जो है वो आज़ादी सहाफ़त को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं वो उन्होंने डिक्टेटर दौर में भी जदोजहद की, उन्होंने हर आमदियत का डट के मुकाबला किया, उन्होंने कोई भी सियासी कुव्वत आई जिसने आज़ादी इज़हार पर कदम लगाने की कोशिश की, जिसने कोशिश की सहाफ़ियों को दबाने की, वो कभी कामयाब नहीं हुई। आज पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, पूरे पाकिस्तान में इस बिल के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने आज ये नेशनल प्रेस क्लब से लेके आज D चौक तक रैली निकाली है और धरना दिया है, एहतजाज किया है और मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो है वो इस बिल को वापस लें, वरना हमारी जदोजहद जारी है।
बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। Thank you. पंजाब फूड अथॉरिटी बहावलनगर की जानब से गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आगाही सेमिनार का इनकाद। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी आसम जावेद की हदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी बहावलनगर के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फूड सेफ्टी और मतवाजन ग़िज़ा के हवाले से आगाही सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार में मास्टर ट्रेनर हाफिज अहमद सईद ने मतवाजन ग़िज़ा और सेहत बख्श खुराक की अहमियत पर तफसीली लेक्चर दिया, जबकि रिसर्च ऑफिसर मैडम रेहाना ने तुलबा को सेहतमंद दुश्मन अनासर के खिलाफ मौजूदा कवानीन और उनके नफाज के बारे में आगाह किया। सेमिनार में तुलबा कॉलेज इंतजामिया ने भरपूर शिरकत की और फूड सेफ्टी के मुतालिक सवालात भी किए। इस मौका पर शुरा का कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी की ये काविश काबिल तहसीन है और इस तरह के आगाही सेशंस को मजीद फ़रोग़ दिया जाना चाहिए ताकि सेहतमंद खुराक और फूड सेफ्टी के मुतालिक शऊर उजागर किया जा सके। खबर शामिल करते हैं चकवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलक हसन फरदोस की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल तजावज़ात और शेर छज्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। चकवाल अहम कारोबारी मराकज़ के बाद कमर्शियल गलियों में भी ऑपरेशन के लिए घंटी खड़का दी गई। चकवाल छप्पड़ बाजार से मुल्हिका गली, सईदी होटल गली, डॉक्टर निसार मलिक और अनारकली बाजार समेत हस्पताल रोड और रईस खाना रोड पर दुकानदारों को तजावज़ात ख़त्म करने और शटर के ऊपर लगे शेड छज्जे रजाकाराना तौर पर उतारने के लिए अल्टीमेटम दे दिया गया। चकवाल सरकारी रास्ते को ज़ाती जगीर समझकर तजावज़ात करने और जहाजी जहाज शेड और छज्जे अज खुद हटाने का काम हंगामी बुनियादों पर जारी। इंतजामिया भी 2 घंटे बाद कारोबारी गलियों का मुआयना करने के लिए तैयार। चकवाल, शफीदा, कटरा और गली कोसर पानवाली से भी तजावज़ात और छज्जों का सफाया करवाया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।